أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ موجود نشاط بھائی صاحب، محمد ابتدائی صدر محمد اسماعیل صاحب، صدیق صاحب، شبیر صاحب، فرحان صاحب، یونس صاحب، رحیم صاحب، شبیر بھائی صاحب، دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جلسہ انتخابی جلسہ ہے اور انتخابات میں کئی سیاسی جماعتیں آپ کے درمیان میں آتی ہیں اور آپ کے سامنے اپنی بات رکھتی ہے۔ میں بحیثیت امیدوار مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے کھڑے ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک بحث مجید خان صاحبی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری والدہ ایک ہیڈ مسٹر پوسٹ پہ ریٹائر ہوئے، میرے والد ایک لیکچرر تھے اور ایک ایگزیکٹو پوسٹ پہ کالج آف فزیکل ایجوکیشن سے ریٹائر ہوئے۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں جو یو ایس میں آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ میری ایک بھابھی ہے جو ایک ڈاکٹر ہے اور یو ایس میں پریکٹس کرتے ہیں۔ میں نے میری گریجویشن بیچلر آف کمپیوٹر اپلیکیشن مکمل کی، اس کے بعد 5 سال میں نے ایچ ایس بی سی گلوبل بینک میں کام کیا۔ 2009 میں مجھے پہلی بار عوامی خدمت کا موقع ملا اور احمد نگر کی عوام کا خدمت کرنے کے قابل بنا۔ وہاں پر ان 5 سال میں، جس میں 3 سال مجھے عظیم شہر اور یہاں کے عظیم لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا، ان 3 سالوں میں ہم نے کئی ترقیاتی کام کیے۔ میئرشپ کے دوران جب ہم مجلس اتحاد المسلمین میئر کی کرسی پہ بیٹھے تو بلدیہ میں کوئی آمدنی نہیں تھی۔ بلدیہ کی آمدنی صرف اس وقت 200 کروڑ روپے تھی اور پورے حیدرآباد کا خرچہ تھا۔ ہم نے بغیر کوئی عام انسان سے 1 روپیہ پراپرٹی ٹیکس بڑھاتے ہوئے نہیں بڑھایا اور صرف ری اسسمنٹ آف پراپرٹیز میں بلدیہ کی جو آمدنی تھی وہ 200 کروڑ سے 1000 کروڑ تک ہم لے گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے ہر کارپوریٹر کو اپنے اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کی چھوٹ دی۔ مجلس آنے سے پہلے جو 2 سال کانگریس کا دور تھا اس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، اور ان 3 سالوں میں جو سب سے قریبی میرے دل کے قریب جو کام تھا وہ تھی غریبوں کی خدمت، وہ تھی 5 روپے کا دوپہر کا کھانا کا انوگریشن اور مڈ ڈے میل لانچ کرنے کا، جہاں پہ دوپہر میں 5 روپے میں غریب عوام کو بھرپیٹ کھانا مل رہا تھا۔ اور جو مجلس اتحاد المسلمین نے شروع کیا، آج قریباً ویسے 150 سے زائد سینٹر تمام حیدرآباد شہر میں آپ دیکھتے ہیں ہر چورستے پہ لگے ہیں، جہاں پہ غریب عوام دوپہر میں 5 روپے میں بھرپیٹ کھانا کھاتی ہے۔ جہاں حیدرآباد میں 5 روپے میں چائے نصیب نہیں، وہاں الحمدللہ مجلس کی نمائندگی پہ 5 روپے میں پیٹ پر کھانا غریب عوام کو فراہم کیا گیا۔ آر او پلانٹس لگائے گئے جہاں صاف ستھرا پانی 5 روپے میں 20 لیٹر عوام کو دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے بحیثیت امیدوار یہاں پہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دیں اور کامیاب کریں۔ میں آپ کے درمیان میں رہوں گا، آپ کے مسائل کو سمجھوں گا اور ہر امکان کوشش کروں گا کہ آپ کے مسائلوں پہ پرزور طور پہ کام کروں اور حل کرتے ہوئے آپ کے بھروسے پہ کھڑا اتروں۔ میں بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین امیدوار نوجوانوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر 3 مہینے میں نامپلی حلقے میں ہم جاب میلہ لگائیں گے، 100 سے زائد کمپنیوں کو نامپلی میں لائیں گے تاکہ نوجوان جو قابل ہے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے اچھے نوکریوں کے لیے۔ میں بحیثیت امیدوار مجلس اتحاد المسلمین آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر ڈویژن میں کوچنگ سینٹرز ہم لائیں گے فری آف کاسٹ کے، ہم اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز لائیں گے، ہم خواتین کے لیے بھی ٹریننگ سینٹرز لائیں گے۔ کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بہت زمین سے آیا ہوں، میں آج جو یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں یہ بے شک اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، ہر چیز اللہ سے ملتی ہے، اور جماعت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے مجھ پر۔ میرے صدر نے مجھ پر اعتبار کیا کہ میں آپ کا خادم بننے کے قابل ہوں اور میں میرے صدر کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، آپ کے توقعات پہ کھڑا اتروں گا، آپ کے مشکلات کو سمجھوں گا، آپ کی ہر پریشانی میں ساتھ رہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں زمینی سطح سے اٹھ کر آیا ہوں، میں معلوم ہے مجھے کہ زمین پہ کس قسم کے تکلیفات ہوتے ہیں۔ آپ کی
आपकी हर एक बात पे लब्बैक कहूंगा और आपके मुसीबत परेशानी और मसाइल को हल करने की पुरजोर कोशिश करूंगा। अरे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैंने हैदराबाद का जो माहौल है, हैदराबाद में जो रुआब है, हैदराबाद में जो कैफियत है, मैंने वो कैफियत कहीं नहीं देखा है। मेरे बुजुर्गों में आपको सलाम करता हूँ। आपने जो बुनियाद डाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और जो सियासी ताकत हैदराबाद की आवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तौर पे दी, ये सियासी ताकत दूसरी सियासतों में मौजूद नहीं। यहाँ पर अभी आपने शहर का शौकत अली को सुना जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, उन्होंने सुनाया कि किस तकारीफात से मुसलमान उत्तर प्रदेश में जीता है। मैंने झारखंड का भी दौरा किया, मैंने गुजरात का भी दौरा किया, मैं राजस्थान भी गया हूँ, मैं मध्य प्रदेश भी गया हूँ, मैंने वेस्ट बंगाल भी गया हूँ। यकीन मानिए, मेरी बात पे यकीन कीजिए, जो मौक़िफ़ हमारा है वो हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में वो मौक़िफ़ नहीं। जो कैफियत हमारी है वो कैफियत दूसरी रियासतों में मुसलमानों की नहीं। यहाँ पे जिस बेखौफ तौर पे हम रहते हैं, दूसरी रियासतों में ये माहौल नहीं। यहाँ पे हम जिस तरीके से निगाह तरीके से और बेखौफ अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, दूसरी रियासतों में डर का माहौल है। अरे यहाँ पर आप ठहर कर हम पे भी तनकीद कर सकते हैं, मजलिस पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, वहाँ पे तो इल्जाम लगाने सोचना पड़ता है, बुलडोजर आ जाता है, जेल को भेजा जाता है। आप मुझे बताइए, क्या ये सियासी ताकत हमारे लिए जरूरी नहीं? ये सियासी मजबूती हमारे लिए जरूरी नहीं? और मजलिस में जिसके लिए यहाँ के बुजुर्गों ने मेहनत की, उस पे बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, नए नए किस्म के तोहमतें लगाते हैं, मजलिस को बी डील कहते हैं, मजलिस पे नए नए इल्जाम और नए नए तमाशे कहकर आपके सामने पेश करते हैं। मैं आपसे यूपी का वाकया बोलता हुआ चलो। यूपी में मजलिस ने 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे। आपको पता है कांग्रेस ने यूपी में कितने उम्मीदवार उतारे थे? कांग्रेस ने यूपी में 400 उम्मीदवार उतारे थे और जीते कितने? 2 जीते, करीबन 2 जीते। और तकरीबन सीटों में जहां पे मजलिस नहीं थी, वहां पे बीजेपी को जिताने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। मैं तफसीलात देख सकता हूँ, वक्त की कमी है। अरे आपके सामने रखता हूँ, क्या हमारे लिए नामपल्ली की सीट मजबूती सीट नहीं? वैसे ही क्या कांग्रेस के लिए अमेठी सीट अहमियत की नहीं थी? वो अमेठी सीट वो थी जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जीते थे, इंदिरा गांधी जीते थे, राजीव गांधी जीते थे, सोनिया गांधी जीते थे। आप मुझे बताइए, मजलिस ने तो अमेठी से मुकाबले में नहीं कुछ अपना उम्मीदवार उठाया था, फिर राहुल गांधी अमेठी क्यों हार गए? वहां पे विधानसभा माने असेंबली के इलेक्शन हुए, अमेठी के 6 सीटों में से 5 एमएलए बीजेपी के कैसे आ गए? वहां पे मजलिस ने तो उम्मीदवार नहीं उतारा। अरे आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का माहौल किस किस्म से चल रहा है? हमारे को हमारी दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है, टोपी देखकर मारा जा रहा है। हमको तरक्याती कामों के बारे में जताने वालों, क्या हमने नामपल्ली हल्के में तरक्याती काम नहीं किए? 17,000 लोगों को आसरा पेंशन दिलाई, 7,000 लोगों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम दिलाई। हमने एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग तामीर की। हमने बाजार घाट में नया जूनियर कॉलेज ला रहे हैं बॉयज और गर्ल्स का। हमने नामपल्ली दवाखाने में बेहतरीन इंतजाम किए, आज वहां पे डायलिसिस हो रहा है। हमने नीलोफर दवाखाने में बेहतरीन इंतजाम किए, हैदराबाद क्या तेलंगाना की रियासत से वहां पर आके इलाज हो रहा है। और हम पर तोहमत लगती है कि हमने तरक्याती काम नहीं किए। तुमने क्या किया? तुमने 15 साल में एक रोड चलाई, तुमने 15 साल में एक वाटर लाइन चलाई, तुमने 15 साल में एक वजीफा भी लाया, तुमने 15 साल में कोई बुजुर्ग के परेशानी को समझने की कोशिश की। अरे कोविड में आपके दरमियान में कौन थे? आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। अरे हम पे इल्जाम लगाने वाले तुम क्या करते हो? हिंदुस्तान में लोकसभा के इलेक्शन में 186 सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस का सीधी तौर पे मुकाबला हुआ। मजलिस उसमें
अरे 186 सीटों पे कांग्रेस कितने सीट जीती? सिर्फ 17 सीट जीती, बाकी के तमाम सीटों में वो हार गई। कमजोर तुम हो, इल्जाम हम पे लगाते हो, मुस्लिम तुम हो, हम पर इल्जाम लगाते हो। बीजेपी से मुकाबला करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है, मजलिस पे इल्जाम लगाते हो। बीजेपी के सामने तुम घुटने टेक के देते हो, मजलिस पे इल्जाम लगाते हो। और मजलिस को छोड़ो, नामपल्ली के मुसलमानों को पागल और जुनूनी कहते हो। अरे क्या हमने ऐसी बदतमीजी आपके साथ कभी की? जो कांग्रेस का उम्मीदवार, जो राहुल गांधी ने आपके सामने उम्मीदवार उतारा, उसने वीडियो में कहा कि यहाँ पर नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान रहते हैं, जिसमें से 1.5 लाख जुनूनी और पागल है। 1.5 लाख ऐसे हैं जो तालिबानी सोच रखते हैं, 1.5 लाख ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, 1.5 लाख ऐसे हैं जो कश्मीरी सोच रखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, हमको और मुझको और आपको कौन से मोड़ पे ये साबित करना पड़ेगा कि हम इस सरजमीन से बेइंतहा प्यार करते हैं? आपको और मुझको कब तक ये साबित करते रहना पड़ेगा कि आप और मैं यही सरजमीन पे जीते हैं और इसमें ही तस्वीर होकर हम जाते हैं? आपको और मुझको कब तक ये साबित करना पड़ेगा? कल तक ये बीजेपी बोलती थी, आज कांग्रेस का उम्मीदवार बोल रहा है, तो क्या आपको दोनों में फर्क दिखता है? यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी एक होकर लड़ रहे हैं। हम कल सीताराम में गए, जहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार का घर है, सुकून से सो रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं। उसके तमाम लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमें एक जगह होना है और मजलिस को हराना है। किसको हराना है और किसको जिताना है? उसको जिताना है जो नामपल्ली की आवाम को तालिबानी कहता है, जो नामपल्ली की आवाम को पाकिस्तानी कहता है। अब आप मुझे बोलेंगे कि हम एक होकर वो जो सोच रखते हैं, जो हमको ये सवाल लगाते हैं, क्या हम उनको शिकस्त नहीं देंगे? क्या हम उनको भारी एक्सपीरियंस से हराएंगे? आप एक हो जाइए। मुझे उनकी तौर तरीके से शिर्क का सहारा लेना नहीं आता। मेरी तरबियत शिर्क के सहारे लेने की नहीं है। मैं मर जाऊंगा मैं मेरे वालिदैन की तरबियत को गिरने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा मगर आपका सर झुकने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा पर आपके गुरूर और तकबर को झुकने नहीं दूंगा। वो कांग्रेस का उम्मीदवार दूसरों को जाकर GSR के नारे लगाता है, मैं अगर जाऊंगा मेरे बुजुर्गों के खतरों में गिरूंगा। मैं अगर जाऊंगा मेरी गुरुदानशी माँ और बहनों के पेट में मुझे डालकर वोट मांगूंगा। मैं अगर जाऊंगा तो मेरे नौजवानों के हौसले पे जीतूंगा। मैं शिर्क का सहारा जो नहीं लूंगा और अल्लाह के साथ साथी नहीं ठहराऊंगा। मैं मांगू तो किससे मांगू? मैं इतिहास क्या अपील करूं तो किससे करूं? मैं एक होने की बात करूं तो किससे करूं? आपके अलावा मेरा है कौन जो आपसे ही मान सकता हूं कि आप एक हो जाइए? आपको ही बोल सकता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाइए। आपको ही बोल सकता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खड़ा परचम बुलंद करिए। और किसको बोलूं? दूसरों के जाना और वहां पर झुकना मुझे नहीं आता। मेरे साथ ही कई हिंदू भाई मेरे साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेरी तालीम ये है, मुझे सिखाया गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ, उनका दीन उनके साथ। अगर मेरे को मेरे हिंदू भाई को अपने तरफ करना है तो अखलाक से करूंगा। अगर उनसे मोहब्बत उनके दिल में जताना है तो अपने किरदार से जताऊंगा। अगर उनको अपना भाई बनाना है तो मेरे तरक्याती काम करके बनाऊंगा। शिर्क का सहारा नहीं लूंगा। और ये तकब्बुर, ये फख्र की बात मैं ये भरोसे से इसलिए करता हूं कि मुझे यकीन है कि यहाँ पे फिरखाने के हर एक बुजुर्ग मेरे लिए हर नमाज में अपना हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे। मुझे ये बात का इसलिए भरोसा है क्योंकि मुझे यकीन है फिरखाने की हर एक मेरी इज्जतदार माँ और बहने मेरे लिए दुआ करेंगे और 30 तारीख के दिन निकल कर वोट डालेंगे। मेरा ये भरोसा इसलिए है क्योंकि मुझे यकीन है फिरखाने का हर एक नौजवान मेरी हिम्मत करेगा, मेरी ताकत करेगा, मैं करेगा। क्या मेरा ये भरोसा करना, क्या मेरा ये भरोसा करना गलत है? क्या मेरा ये भरोसा करना
صحیح نہیں ہے؟ کیا میں بھروسہ کر سکتا ہوں کہ میرے بزرگ میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے اور مجھے اپنی دعا سے اور ووٹ سے نوازیں گے؟ کیا میں یہ بھروسہ کر سکتا ہوں کہ میری عزتدار ماں اور بہنیں اپنی دعا میں مجھے یاد کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کو 30 تاریخ کے دن کامیاب کریں گے؟ کیا میں یہ بھروسہ کرتا ہوں کہ میرے نوجوان مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے اور ہر پرچم کو غلط کریں گے؟ اگر آپ مجھے بھروسہ دلاتے ہیں